Let's continue with the male reproductive system. So we were talking about the different organs and the ducts involved in the process of reproduction in males. So now we are going to talk about in the previous video, I told you the passage of the sperm. So I hope you all remember that sperms, first of all, when they are released from the seminiferous tubule, move on to the retitestes, from retitestes to vasa afferentia, from vasa afferentia to epididymis. Now, epididymis, which further has three main parts, which is the caput epididymis, the corpus epididymis, and the caudal epididymis. Now, the epididymis further opens into the vas deferens. Now, vas deferens also receives the secretion from seminal vesicle, which is the accessory gland. Now, vas deferens, I told you again, opens into the ejaculatory duct through the ampulla region. Ampulla, I told you, is the swollen ending of the swollen opening of the vas deferens. Then I told you that this ejaculatory duct then opens into the urethra. Now, urethra also has three parts. You can note down the three parts of urethra. The three parts of urethra are the membranous urethra, glandular urethra, and the penile urethra. Penile urethra is the next part, the third part of the urethra. And now this urethra further opens into the urethral meatus, which is also called the urethral orifice. So here that we're talking about penis to external opening में open हो रहा है. So ये जो है main काम urethral meatus का काम क्या है? बाहर it opens the into outside. Then the external genitalia, the penis. This is the external copulatory organ, external genitalia. That is copulation में help कर रहा है, insemination में help कर रहा है, and it is the genitalia, external, बाहर की तरफ present genitalia है, बाकी का reproductive system सारा अंदर present है male body के. This is the external genitalia, which is penis. Now it is made up of special tissue, special type का tissue present होता है जिसे हम कहते हैं erectile tissue. Right? So erectile tissue के अंदर हमारे पास दो तरह के tissues present हैं. One is called the corpus spongiosum, and the second is called corpora cavernosa. Right? So I hope you all have written this, corpus spongiosum and corpora cavernosa. So ये दो टाइप के टिश्यूज हैं जिन्हें हम कहते हैं इरेक्टाइल टिश्यू, जो कि हेल्प करते हैं इरेक्शन में, और इरेक्शन होने की वजह से इट फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन. साथ ही यहाँ पर डिस्टल एंड पे प्रेजेंट होता है ग्लैंड्स पीनस, जिसके ऊपर कवरिंग होती है एक लूज स्किन की, जिसे हम कहते हैं फोर्ड स्किन. नाउ एक्सेसरी ग्लैंड्स में आते हैं हमारे पास सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. नाउ सेमिनल वेसिकल का आपको मैंने पहले भी बताया, पेयर्ड ग्लैंड्स हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं सेमिनल वेसिकल. सेमिनल वेसिकल का आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है. क्या रिलीज करते हैं? दे रिलीज ये एक तरह का सिक्रीशन रिलीज करते हैं जिसमें प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. इसके साथ ही प्रेजेंट होता है इसके अंदर सिट्रिक एसिड यहाँ प्रेजेंट रहेगा, और साथ ही यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेंगे? कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी रिलीज होंगे. लेकिन पीएच कैसा रहेगा जो सेमिनल वेसिकल से रिलीज होगा? दैट विल बी अल्कलाइन. इसके साथ ही आ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड का नाम ही इसीलिए क्योंकि ये क्या मेनली रिलीज करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज करते हैं. प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये कुछ लिपिड के कंपाउंड्स हैं, लिपिड के जो हमारे लिपिड से बने हैं, जो कि क्या कर रहे हैं? मेन इनका काम है इन्फ्लामेशन को स्टॉप करते हैं. तो कोई भी बेसिकली इनका काम हो गया एक तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, इन्फ्लामेशन को स्टॉप करना, ब्लड का जो फ्लो है उसको स्टॉप करने का काम जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स करते हैं, विच आर रिलीज्ड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड से कैल्शियम भी रिलीज होता है. इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी पेयर्ड होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है. देयर इज वन ग्लैंड विच इज सिंगल, विच इज नॉट प्रेजेंट इन द पेयर. बल्बोयूरेथ्रल भी पेयर्ड ग्लैंड्स हैं. मेन काम बल्बोयूरेथ्रल का क्या है? इनका काम है मेन लुब्रिकेशन ऑफ द पीनस. अब ये क्या हो रहा है लुब्रिकेशन ऑफ द पीनस के अंदर, कैसे हेल्प कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है किसके लिए? दोनों के लिए, फॉर द यूरिन एज वेल एज फॉर द सीमेन. अब यूरिन जो है आपको पता है वो एसिडिक होता है, जबकि सीमेन जो है वो अल्कलाइन होता है. सो जब यूरेथ्रा में से अगर यूरिन पास ऑन हो रहा है तो वो एक तरह की एसिडिक कंडीशंस वहां क्रिएट कर देगा. तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की जो रिलीज है, जो सिक्रीशन है, वो क्या करेगी? वो एक तरह का लुब्रिकेशन कर देगी, सो दैट स्पर्म्स कैन इजीली पास ऑन, ताकि उनके ऊपर वो एसिड अटैक करके उनको किल नहीं करे. सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ताकि वो
पैसेज को एक तरह का अल्कलाइन कंडीशंस दे दे सो दैट स्पर्म्स को यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल सके. So that's all for today. We'll be dealing with the female reproductive system tomorrow in the next video.